Great morning, dear students. I am Babita here, your English educator. Hope you are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to start our chapter number 9. And name of the chapter is The Case of the Missing Necklace. This is a chapter from English literature. So, pay a great attention. Firstly, I would like to define the meaning of this chapter. The case of the missing necklace means this chapter is based on revolves around a necklace that was stolen from city's museum, and that necklace was belonged from the Begum's collection. And this is a case in the chapter that we will read. Let's start. Imagine you are playing hide and seek with your friends in a park near your home. Suddenly, two thieves rush across the park with a policeman chasing them. They throw a small bag behind the tree where you are hiding and run away with the policeman close behind them. आप हाइड एंड सीक लुका छिपी का खेल खेल रहे हो अपने घर के पास वाले पार्क में। तभी क्या होता है, दो चोर होते हैं। चोर क्या करते हैं, तो वो चोर क्या करते हैं, वो बैग जो होता है बैग वहाँ पे फेंक देते हैं जहाँ पर आप छिपे हुए थे। तो और उनके पीछे पुलिस लगी होती है उन चोरों के पीछे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? What will you do? Tick the option of your choice. Discuss your choices with your partner. आपने बहुत सारी choices दी हुई हैं, उस पर टिक करना है according to your wish. You will run behind the policeman and give him the bag. You decide to carry the bag to the nearest police station with your friend and report the incident. You will tell your parents about it and bring them to the park where the bag lies. You think it's better to avoid any trouble and go home. You will not tell anything about it to anyone. You will keep the bag and not tell anyone about it. One of your friends will keep an eye on the bag while you call the police, your parents. You should be alert citizen, discuss in class. Read and enjoy. Crime statistics indicate a rise in crime in most parts of the world. Apart from effective policing, alertness on the part of citizens can help nab criminals who are on run. स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। जो संसार है, संसार में क्राइम के, अपराधों के बहुत सारे मामले हैं जो कि उजागर हो रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है अच्छे से, इसके बावजूद कुछ जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने में आप जो नागरिक हैं, नागरिक भी मदद कर सकते हैं। लेट अस रीड द इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव स्टोरी। ये जासूसी की कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रीड करते हैं। विल द लिटिल गर्ल सक्सीड इन फाइंडिंग द मिसिंग नेकलेस? क्या छोटी लड़कियां सक्सेस होती हैं उस मिसिंग नेकलेस को पाने में? विल द रियल कल्प्रिट बी अरेस्टेड? क्या वास्तविक अपराधी पकड़ा गया? लेट्स फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। Vidhi looked at the dark sky and said in a complaining tone, Nazma, it's raining again. We cannot play outside. विधि आसमान की तरफ, काले बादलों की तरफ शिकायत करते हुए कहती है नज़मा अपनी फ्रेंड को कि भाई बारिश हो रही है, वी कैन प्ले आउटसाइड, हम बाहर नहीं खेल सकते। नज़मा डिडंट सीम टू बोदर मच अबाउट इट। नज़मा को इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। शी सेड इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लेट्स प्ले इन द कॉरिडोर, कि भाई कॉरिडोर में खेलते हैं। Soon they started running around and playing in the corridor. फिर वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है, खेलना शुरू कर देती है कॉरिडोर में ही। It was a long corridor with doors of 5 flats opening into it. ये एक बड़ा कॉरिडोर है जिसमें कि 5 फ्लैट्स हैं, 5 दरवाजे खुलते हैं। एंड देयर वॉज अ लिफ्ट एट द फार एंड, और एंड में यानी लास्ट में क्या है, लिफ्ट है। दिस वॉज अ 5th फ्लोर ऑफ द 20th स्टोर्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये 5th फ्लोर है जहाँ पर वो दोनों फ्रेंड्स खेल रही हैं, जहाँ वो रहती हैं। और जो ये बिल्डिंग है ये 20 फ्लोर तक है। विधि एंड नज़मा वर नेबर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स।
विधि और नज़मा नेबर्स है, पड़ोसी हैं, और फैमिली फ्रेंड्स भी वो हैं। शुभम हु लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर ऑल्सो जॉइन दैम। शुभम नाम का एक लड़का है जो कि 6th फ्लोर पर रहता है, वो भी उनके साथ खेलने आ जाता है, उन्हें ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन कर लिया था। सडनली द डोर ऑफ द फ्लैट एट द फर्दरेस्ट एंड अपोजिट द लिफ्ट ओपन। जो लास्ट में फ्लैट है उसके पास लिफ्ट है यानी, तो वो ओपन होता है। अ ह्यूज मैन विद अ थिक बियर्ड स्टूड देयर ग्लैरिंग एट दैम। एक अजीब सा आदमी जिसकी घनी सी दाढ़ी है, वो उन बच्चों की तरफ घूर रहा था। ही हैड रेड आइज एंड वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। उसकी रेड आइज थी और उसकी जो ड्रेस थी वो ब्लैक थी। ही शाउटेड एंगरली, वो गुस्से से चिल्लाता है, गो अवे यू ब्रैट्स, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस। कि बदमाशो यहाँ से भागो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिस्टर्ब करने की हमें। The children were aware that some new tenant had shifted into that flat a week before, but they had not seen them. बच्चों को पता था कि भाई कोई नए किराएदार यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं लास्ट वीक, परंतु उन्होंने बच्चों ने उनको नहीं देखा था। द थ्री फ्रेंड्स लुक्ड फ्राइटन। जो तीनों बच्चे थे वो डर गए। सॉरी अंकल, विधि मैनेज्ड टू विस्पर। विधि ने बुदबुदाते हुए मीन्स लो साउंड में कहा कि भाई सॉरी अंकल। द डोर क्लोज्ड विद अ बैंग एंड द थ्री चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर हाउसेस। मतलब एकदम से झटके से जो दरवाज़ा था वो बंद हुआ और बच्चे भी अपने अपने घर वापस चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज एज यूजल। नेक्स्ट मॉर्निंग उसी तरह थी, यूजल एज यूजल, और दिनों की तरह। वाइल विधि वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट एंड वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर स्कूल। विधि ब्रेकफास्ट करी थी और स्कूल जाने के लिए वो तैयार थी। शी वॉज ऑल्सो वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी। वो न्यूज़ वॉच कर रही थी, न्यूज़ देख रही थी टीवी पर। द न्यूज़ रिपोर्टर सेड इन अ सीरियस टोन। न्यूज़ रिपोर्टर ने सीरियस टोन में कहा, अ प्राइसलेस नेकलेस विद विच वॉज पार्ट ऑफ बेगम्स कलेक्शन वॉज स्टोलन फ्रॉम द सिटीज़ म्यूजियम लास्ट नाइट। एक अनमोल नेकलेस है जो कि म्यूजियम बेगम कलेक्शन से है, और वो सिटी म्यूजियम से लास्ट नाइट चोरी हो गया। The thieves decamped with the necklace and some precious jewels. decamped का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से। जो चोर थे वो रहस्यमय तरीके से इस नेकलेस को लेकर चले गए और वो साथ में बहुत सारे आभूषण भी ले गए। द नेकलेस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $12 मिलियन इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो इस नेकलेस की जो कीमत है तकरीबन 12 मिलियन है इंटरनेशनल मार्केट में। द सीसीटीवी कैमराज हैड बीन डिस्कनेक्टेड बाय द थीव्स। और जो सीसीटीवी कैमराज थे वो चोरों द्वारा डिस्कनेक्ट किए गए थे। द पुलिस रिमेन क्लूलेस। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। एंड नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार। और कोई भी अरेस्ट नहीं हो पाया था। टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टोलन नेकलेस एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थेफ्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर 200। कि भाई इस चोरी से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है चोरों से रिलेटेड, 200 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है किसी को अगर मिलती है इंफॉर्मेशन। अ रिवॉर्ड ऑफ 10 लाख रुपीज़ वुड बी गिवन टू द पर्सन प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीव्स। और 10 लाख रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा जो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है। दैट वॉज द अनाउंसमेंट मेड बाय द रिपोर्टर एज अ पिक्चर ऑफ द नेकलेस फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। जैसे ये तस्वीर नज़र आई स्क्रीन पर, विधि हर्ड द हॉकिंग ऑफ द स्कूल बस। हॉकिंग का मतलब होता है हॉर्न। विधि को स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया। शी रैन विद आउट विद हर बैग। वो अपने बैग के साथ भागी। द इमेज ऑफ द नेकलेस लिंगरिंग इन हर माइंड। और जो इमेज थी नेकलेस की वो उसके माइंड में घूम रही थी, छप गई थी। लिंगरिंग का मतलब होता है छप जाना। जो नेकलेस की इमेज थी वो उसके विधि के माइंड पर छप गई थी। डियर स्टूडेंट्स, you have to read out this page and you underline the difficult word that I will tell you tomorrow. Your homework will be this, that you have to revise this page. Thank you and have a nice day. Bye bye beta.